Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clearly audible? One of you please confirm. Walaikum assalam. Yes, you are Muslim. All right. Let's begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, we have almost covered half of the book. We have covered the 50% of the syllabus. Inshallah, continue. Okay. Capturing the hearts of the people. A paragon of virtue and fairness, Abu Bakr radiallahu anhu captured the hearts of his people. He viewed justice not as a duty but also as a means to spread the message of Islam through his practical example. Yesterday, we learned about how fair and how wise and how intellectual Abu Bakr radiallahu anhu was. So again, we will see कि जब कोई बंदा आदल वाला होता है, fair होता है, justice वाला होता है, तो people start loving them. इस टाइप के जो लीडर होते हैं उनके लिए फिर there is too much of love. People are not following them out of fear but out of love. तो उसी तरीके से अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो बहुत फेयर थे and he captured the hearts of the people, common people. और it was not just कि वो अपनी duty, because to honor his job he was doing like that. He was doing it ताकि वो एक message of Islam जो दावा है उसके लिए एक practical example portray कर सके. If wealth found its way into the Muslim treasury, he would divide it among the people in a completely fair manner. He even put himself on an equal level with the common masses of Muslims. यानी वो आज तरीके के जो हमारे politicians हैं आजकल के उस तरीके के नहीं थे जो सिर्फ अपनी पॉकेट्स को भरते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को और गरीबों तक उनका हक पहुंचने नहीं देते. ये उस टाइप के लीडर हैं जो अगर कभी कोई वेल्थ उन्होंने हासिल की है तो वो लोगों में इक्वली बांटते थे और अपने आप को भी कॉमन मैन के लेवल पे रख के चलते थे. Abdullah ibn al-As radiyallahu anhu reported that Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu one Friday addressed the Muslims, "Tomorrow morning, bring with you camels that are meant for charity, and we will then distribute them among the deserving. But let no one enter with us into the barn or stable that contains the camels without first gaining our permission." तो एक बार ऐसा हुआ, अब्दुल्ला इब्न अलास रिपोर्ट करते हैं रदियल्लाहु अन्हु के अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अनाउंस किया फ्राइडे सरमन में कि कल आप जो है अपने साथ अगर जो आपको चैरिटी करना है कैमल वो लेकर आए और वो हम लोग जो डिजर्विंग है जो गरीब तबका है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फिर उन्होंने कहा कि जब तक के हमारी परमिशन नहीं होती तब तक के वो जो बान है जहां पर उन्हें रखा जाता है कैमल्स को उधर एंटर नहीं करना. Upon hearing Abu Bakr's speech, a woman said to her husband, "Take this bridle, the gear by which a camel is controlled and guided, for perhaps Allah will provide us with a camel tomorrow morning." तो ये बात सुनकर फिर एक औरत ने क्या किया, अपने हस्बैंड को कहा ये ब्रिडल पकड़ो, ये जो उसके ऊपर सैडल जैसा डालते हैं ना उसे कहते हैं. तो उन्होंने दिया उसको उनके अपने हस्बैंड को और कहा कि तुम ये ले जाओ, हो सकता है कि कल हमें एक कैमल मिले. The following morning, the man went out to see whether he would be given a camel, but found that Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu had entered the enclosed area that contained the camels. In spite of Abu Bakr's instruction the previous day, the man entered without obtaining anyone's permission. Turning around and seeing the man, Abu Bakr radiallahu anhu asked, "Why have you entered here with us?" He then took the man's bridle and hit him with it. After he finished distributing the camels, Abu Bakr radiallahu anhu summoned the man, gave him his bridle back and said, "Exact retribution for what I did to you." As the leader of the nation and the man who was responsible for the camels, Abu Bakr radiallahu anhu had to make sure that the camels would be distributed in a fair and organized manner. That is why he forbade people from entering with him. Therefore, he had every right to punish the man for disobeying him. Nonetheless, he feared Allah so much that he later regretted the permission he meted out to the man and wanted the man to hit him back. Umar radiallahu anhu, who was shocked to hear Abu Bakr's unusual request, said, "By Allah, he will not exact retribution. Do not make it a sunnah. Do not make hitting a rule and a precedent for those who come after you." Abu Bakr radiallahu anhu replied, "Then who will protect me from Allah on the day of resurrection?" Umar radiallahu anhu said, "Then make him happy. Instead of allowing him to hit you back, give him something to make him happy." Abu Bakr radiallahu anhu, giving into Umar's suggestion, called his servant and ordered him to give the man a riding camel, its saddle, some velvet and 5 dinars. The man was satisfied with the gifts. अब ये जो किस्सा था कि वो जो औरत ने उनको दिया था अपने हस्बैंड को कि ये ब्रिडल ले जाओ एंड देन
उम्मीद की थी कि उनको कैमल मिलेगा। अभी उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे कि नोबडी इज अलाउड टू एंटर, वो जो स्टेबल वाला एरिया है उधर बान के अंदर कोई भी नहीं आएगा जब तक कि उसको परमिशन ना दी जाए। तो उधर अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु अन्हु एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु वर दे एंटर्ड इन द बान, लेकिन ये आदमी जो है जबरदस्ती पीछे से फिर वो भी अंदर एंटर हो गया। जैसे ही अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उनको देखा तो उन्होंने उसके हाथ से वो बर्डल लिया, सैडल, और उससे उसको मारने लगे। मारने के बाद फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद ये जो कैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो सिलसिला खत्म हुआ। अब फिर उन्होंने उस आदमी को बुलाया और उसको कहा कि अब तुम जो है यू हैव द राइट टू हिट मी, तुम मुझे मार सकते हो। इस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कमेंट किया कि आपने जो इसको पनिश किया है ये उसकी गलती या डिसोबीडियंस की वजह से किया है, तो आप ये रिक्वेस्ट मत करो क्योंकि इसको एक सुन्ना मत बनाओ और हिटिंग अ रूल को जो है उसको एक रूल की तरह मत लेकर चलो, वरना फिर जो आने वाली जनरेशन है इसको इसी तरीके से लेकर चलेगी। इसके बदले अगर आप कुछ चाहते हो तो इसको गिफ्ट्स दे दो। तो और इससे पहले अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का कमेंट था कि उन्होंने कहा आप ऐसी अनयूजुअल रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं अगर ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट ना करूं तो यौमुल आखिरा के दिन मुझे अल्लाह ताला के अजाब से कौन बचाएगा। तो उस पे फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु कमेंटेड कि इस एक्टिविटी को आप जो है सुन्ना मत बनाएं क्योंकि आगे चल के फिर ये जो हमको प्रिसीड करेंगे वो इसी को फॉलो करेंगे। इसके बदले आप उस आदमी को गिफ्ट दे दीजिए और उसको खुश कर दीजिए। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको उमर रदियल्लाहु अन्हु के सजेशन को एक्सेप्ट किया और अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि वो उसको एक कैमल दे, सैडल दे, कुछ वेलवेट दे यानी एक्सपेंसिव क्लोथ्स वगैरह दे और 5 दिनार दे। एंड वो आदमी जो है वो खुश होके लौट गया। सो यू कैन सी लेसन्स फॉर अस अगेन कि फेयरनेस यानी मौके की नजाकत पे हम रिएक्ट करेंगे। इट्स नॉट दैट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है कि ये सारे जो नेक लोग थे ये बहुत नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बींग्स थे और उनके रिएक्शन बहुत नॉर्मल थे। जैसे एक नॉर्मल इंसान कैसे रिएक्ट करेगा उस तरीके से वो रिएक्ट किया करते थे। लेकिन उसके बाद जो वो एक्शन लेते थे ना, दैट इज कमेंडेबल। लाइक इफ दे कमिट अ मिस्टेक और इफ दे डू समथिंग आउट ऑफ रेज ऑफ एंगर, वो उसको कैसे नलिफाई करते थे। अभी एक्चुअली वो आदमी जो था उसकी गलती थी, ओके उन्होंने एक्शन लिया, ही वाज द पावर मैन इन पावर एंड इन अथॉरिटी, सो ही हैड ऑल राइट टू डू इट, बट फिर भी उनको वो गिल्टी पिंच हुआ कि व्हाई डिड ही हिट द मैन। सो वो उसको नलिफाई करने के लिए ही वाज आस्किंग दैट पुअर मैन टू हिट हिम बैक, ताकि जो उनका अकाउंट जो है वो इक्वल हो जाए। अब उसमें आप विजडम ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु देखें, उन्होंने झट से उन्होंने बताया कि आप जो भी हरकत करेंगे यू नो थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग थिंकिंग इट्स अ सुन्ना। तो आप ऐसा कोई भी स्टेप मत ले जिससे कि कुछ गलत मैसेज हम आगे की जनरेशन को दें। तो इमीडिएटली ही गेव अ वंडरफुल एडवाइस एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इमीडिएटली ही पेड हीड टू द एडवाइस और उन्होंने फिर उसको फॉलो किया और आदमी भी खुश और ये दोनों भी इत्मीनान में आ गए। Distributing the nation's wealth. During Abu Bakr's caliphate, the principle of equality extended even to the distribution of the nation's wealth, which was a policy that bothered some companions who felt that those who had made greater sacrifices for the cause of Islam deserved a greater share of wealth. अभी अबू बकर की खिलाफा में ये जो वेल्थ थी, नेशंस वेल्थ थी, यानी पूरे नेशनल लेवल के ऊपर जो उनकी वेल्थ थी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी भी जो वो बना रहे थे, उससे कुछ सहाबी जो है वो परेशान थे। क्यों परेशान थे? इन्होंने तो एक इक्वल वाला सिस्टम रखा हुआ था, बट कंपेनियंस को लगता था कि अगर किसी ने ज्यादा सैक्रिफाइस या कुर्बानी की है तो उसको वो सहाबी ज्यादा डिजर्व करता है शेयर। At first, the Muslim treasury was situated in the district of As-Sun, where Abu Bakr radiallahu anhu lived. No one guarded the treasury, which prompted some people to ask Abu Bakr radiallahu anhu why he didn't appoint a guard. Abu Bakr radiallahu anhu told the questioner he had nothing to be afraid of and that the wealth was safe. He said this because the treasury always remained empty. It remained empty not because the Muslims were going through tough economic times, but because wealth was distributed to the needy and poor as soon as it entered the treasury. What a beautiful leader. ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। मुस्लिम ट्रेजरी जो थी वो अस-सुन्ना में, अस-सुन इज द नेम ऑफ अ प्लेस जहां पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु रहते थे। अब इनके पास जो थी वो ट्रेजरी थी, लेकिन इस ट्रेजरी की खासियत ये थी कि इसका कोई गार्ड नहीं था।
अब सहाबाज जो थे वो परेशान होते थे, वो कहते थे कि आप बिना किसी गार्ड के ये पूरी ट्रेजरी को खुले रखते हैं, इसकी क्या वजह है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसकी गार्डिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो हमेशा अक्सर खाली होती थी। खाली तिजोरी की क्या गार्डिंग करनी है? अब वो खाली क्यों होती थी? ऐसा नहीं था कि मिस्कीन थे या नेशंस जो थे वो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा था। वो खाली इसलिए होते थे क्योंकि जैसे ही कोई वेल्थ आती थी इमीडिएटली इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो गरीब मिस्कीन तबका है, डिजर्विंग तबका है, उसमें वो इमीडिएटली बांट दिया करते थे। दैट इज द वे इट शुड बी। यानी यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स एंड जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं। हालांकि कब्र में कुछ नहीं जाना, लेकिन सिर्फ अपने अकाउंट्स, अपने स्विस अकाउंट्स, अपने बैंक्स, अपने गोल्ड, अपने ट्रेजरी, अपने ज्वेलरी, अपने प्रॉपर्टी एंड असेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो डिजर्विंग है वो भूख तरी से यानी गुर्बत में मरते जा रहा है। बट यहाँ पर ऐसा सिलसिला नहीं है। दीज आर द आइडियल स्टेट्समैन एंड लीडर्स। सो ये क्या करते हैं, जैसे ही मिला कुछ माला गनीमत, इमीडिएटली उसको डिजर्विंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर उसकी ट्रेजरी की गार्ड्समैन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु did not like wealth to be stored for an extended period of time. अब इस पे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। There is a tip for us. हमें भी जो है ना, Now, I don't want you to get me wrong. मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप जो अपनी पूरी सेविंग्स को एम्प्टी करें, but you must have seen and heard and read in Quran again and again कि हम जो आगे पहुंचाते हैं वो कौन सी चीज है पता है? माल में से वो जो हमने सदका कर दिया हो, वो जो हमने फी सबीलिल्लाह कर दिया हो, वो जो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं, वो चीज हमारी जो है वो प्रिजर्व हो जाती है अल्लाह के पास जाके। लेकिन जो हम सोचते हैं ना कि हमने सेविंग्स खरीदी, हमने प्लॉट ले लिया, हमने ज्वेलरी बना दी, हमने अपने बैंक अकाउंट को भर दिए, वो जो है हमारे लिए बवाल का बायस बन सकता है, नौजुबिल्लाह कब्र के अजाब का सिलसिला बन सकता है। तो कोशिश हमने क्या करनी है? I wouldn't say कि you give 100% of what you are earning और आपकी 100% सेविंग जो आप फी सबीलिल्लाह करें, but trust me, even if you make an account in such a way कि आप अपनी अर्निंग का 10% every month, okay, आप अपनी जरूरियात को पूरा करें। अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करना भी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एज गुड एज अ चैरिटी। अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करना इज एज गुड एज चैरिटी। बट इसके बावजूद आप अपनी अर्निंग्स, अब आप बोलेंगे आई एम नॉट वर्किंग, आई एम हाउस वाइफ, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी गेटिंग सम पॉकेट मनी। आपको कुछ पैसा एवरी मंथ आपके पास होता होगा। हर हाउस वाइफ, बी इट एनी लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ ना कुछ हर मंथ उसके हाथ में होता है। उसमें से सही छोटे से छोटी रकम भी आपके पास जमा क्यों नहीं होती है, उसमें से 10% निकाल के अपने हाथ से, अपने होशो हवास में, अभी जब आप जिंदा हो, आप अपने हाथ से सदका कर लिया करें। जो जेनरस है, जो गनी है, उसका बहुत बड़ा दर्जा है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। तो ये एक अमल है। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग, वन ऑफ द स्कॉलर्स हैज सेड कि एक, आई मीन अब इसकी दलीलें नहीं मांगने शुरू कर देना, बिकॉज इट इज जस्ट, यानी जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि मॉरल टाइप ऑफ अ स्टोरी। सो अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि भाई कौन सा ऐसा अमल है जो वो करना चाहता है अगर उसे दोबारा जिंदगी मिले, तो वो सदका करना चाहता है। अब वो सदका क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसका कंपनसेशन जो है वो बहुत आला है, बहुत बेहतरीन है। इसीलिए अब जब हमें इस चीज की हिदायत मिल गई है कि हमें इस चीज की पता चल गया है कि सदका का एक अलग लेवल होता है, तो अपने ही हाथ से करें। ये मत सोचें कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद या कोई हमारे पीछे से कर लेगा ये सदका। हमें खुद अपने हाथ से, अपने होश और हवास में, अपनी बेहतरीन इनकम का अपने हाथ से सदका करना है। यस रीन, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अच्छा, मैं एक छोटा सा स्टोरी बोल सकती हूँ अगर प्लीज टाइम हो तो? प्लीज प्लीज, लाइक इट, आई लाइक टू हियर, बोलो। ओके, एक्चुअली मैंने एक बार एक स्टोरी सुनी थी। एक कपल थे, ओके, दे वर नॉट वेरी यंग, उनके बच्चे वगैरह भी नहीं थे। तो वो लोग वेरी नीडी थे। तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि दे अल्लाह ताला उनको ब्लेस करे विद लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट। फिर अल्लाह ताला ने उनको कंडीशन दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल ब्लेस यू विद द वेल्थ, लेकिन एक कंडीशन में, फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ जितना भी बचा है, या फिर सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ, either of that of your life, you will be wealthy,
एंड बाकी यू विल बी नीडी. तो तुम चूज कर लो तुमको कौन सा हाफ ऑफ योर लाइफ वेल्दी की तरह रहना है और कौन सा गरीब की तरह रहना है. तो दे डिसाइडेड टू बी वेल्दी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ. ठीक. तो अल्लाह ताला उनको ब्लेस किया. फिर उनके पास जो वेल्थ आया, मोस्ट ऑफ द वेल्थ उन्होंने सदका में दे दिया, ये सोच के कि अभी उनके पास मौका है करने के लिए. तो उन्होंने दे दिया एंड दे स्टार्टेड लिविंग लाइक यू नो नीडी पर्सन इटसेल्फ. जितना जरूरत था उतना जरूरत पूरा किया, बाकी दे दिया सदका में. फिर अल्लाह ताला उनसे इतना खुश हुए, उनका जो बाकी जो हाफ ऑफ देयर लाइफ था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा था दे विल लिव लाइक ए नीडी, वो लाइफ भी उनको एज ए वेल्दी यू नो दे अल्लाह ताला blessed them to be a wealthy couple. तो उनकी जो बाकी पूरी जिंदगी थी दे लिव लाइक ए वेल्दी कपल. तो सदका का वैसा होता है, अगर एक दो तुमको अल्लाह ताला 10 दे देते. Absolutely. Jazakallah khair for that inspirational moral. Yes, इसके यही है. एक और मुझे अभी हदीस से याद आ गई कि एक शख्स ने अपनी वसीयत करके वो गया था कि मेरा जो स्टोरेज है, यानी ही हैड अ बिग स्टोरेज ऑफ डेट्स, तो वो वसीयत करके गया था कि मेरे मरने के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना कि ये तकसीम कर दे गरीबों में. एंड देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलोड हिज वसिया, एंड देन उसके मरने फौत होने के बाद उन्होंने वो पूरा तकसीम कर दिया. इट वाज अ बिग स्टोर. ये करने के बाद फिर अपने हाथ से पूरा उन्होंने कर लिया. फिर देन ही केम इनसाइड द स्टोर रूम टू चेक कि सारा कुछ ठीक ठाक हो गया कि नहीं. एंड देन इन द कॉर्नर ही सॉ वन स्मॉल ड्राई डेट एंड देन ही पिक्ड इट अप. और उसको उठा के फिर उन्होंने अपने साथ जो साहबी थे उनको कहा कि अपनी अगर जिंदगी में ये अपने हाथ से अगर ये एक भी सदका कर लेता था तो ये जो पूरा जखीरा है इससे कई गुना ज्यादा उसका अजर था. दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग कि अपने हाथ से अपनी बेहतरीन इनकम का, अपने बेहतरीन होशो हवास में जब आप अपने जो आपको जो पसंद है वो हिस्सा आप जब देते हो तो उसका अजर जो है या उसकी जो कद्र मंजर अल्लाह के हाथ में है, वो सामने है, वो बहुत ज्यादा आला है. सो डू इट, मेक इट अ हैबिट कि आप खाना भी जो है खाना खिलाएं, खाना पहुंचाएं लोगों को, अपने नेबर्स को, गरीब को. चलते चलते अपनी गाड़ी में पानी, जूस, कीप सम फूड स्टफ. चलते चलते आपको क्लीनर्स मिलेंगे, आपको कोई वर्कर्स मिलेंगे. आपको आपकी अगर नियत जैसी होगी ना वैसे आपके लिए रास्ते इंशाल्लाह खुलते जाएंगे. आप अपना हाथ जो है वो देने वाला रखें. जो देने वाला हाथ रखता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने फिर झुकता है वो बंदा. वो दुनिया में इंसानों के सामने नहीं झुकता. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा. अल्लाह ताला हमको जो है अपना ही डिपेंडेंट रखे. हमें किसी औलाद, किसी इंसान, किसी शख्स, किसी अमीर आदमी, किसी स्पॉन्सर की जरूरत ना पड़े. हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा वाहिद कफिल जो अल्लाह बने. तो इसीलिए सदके का जो है अपना एक मामूल बना लीजिए. एंड आई वुड ऑल्सो एनकरेज यू कि अपने बच्चों को भी इस चीज की आप आदत डलवाएं. मसलन यू मस्ट बी गिविंग देम सम पॉकेट मनी, या समझो अगर वो कुछ अर्न करते हैं, एनी मनी फॉर एग्जांपल इफ दे हैव ईदी और थिंग्स लाइक दैट, उनको भी इस चीज का उनके हाथ से करवाएं सदका. समटाइम्स जैसे हम लोग इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वी डोंट फाइंड मिस्कीन वेरी इजिली, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा सदका बॉक्स बना दें, उसमें 100 फिल्स ही सही, बट अपने बच्चों को इस चीज की हैबिट डालें. जिस चीज की हम हैबिट डालेंगे इंशाल्लाह फिर वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा. तो अपने आप में आप खुद भी करें, अपने घर वालों को भी कराएं, अपने बच्चों को भी इस चीज की हैबिट डलवाएं, ताकि कल को जब वो ये करेंगे, क्योंकि माल की मोहब्बत ऐसी होती है, इट इज अगेन एंड अगेन मेंशन इन द कुरान, माल की मोहब्बत ऐसी होती है कि एक बार उनको वो बखील पने की, अपनी ही जरूरतों को पूरा करने की आदत पड़ जाएगी, दे विल नेवर हैव द हैबिट ऑफ गिविंग. उनको हैबिट क्या डालनी है, हमको शेयरिंग, गिविंग एंड काइंडनेस, ये चीजें उनके दिल में डालना है. तो छोटे से छोटा सदका, छोटे से छोटी चैरिटी विल मैटर अ लॉट. तो इस चीज को हम लोगों को आज का हमारा एक जो जैसे हम कहते हैं ना एक्टिविटी या लेसन या टिप हम जो ले जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू सदका. may अल्लाह हम लोगों का दिल जो है वो खोले और हम अपना जो है माल जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, ओके, हमारी हलाल इनकम का जो माल है वो हम सही राह में लगाएं और वो फिर हमारे लिए एक बेहतरीन अजर का बायस बने आखिरा, ताकि हम जो है we do justice to whatever has been granted or bestowed upon us. Ameen ya Rab. So what happened when it could be used to take care of the needs of his people? When Abu Bakr radiallahu anhu moved on to the center of Al-Madinah, the treasury moved along with him. In fact, the treasury became a part of his home. अभी he was the responsible person. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है मदीना में शिफ्ट हुए in the center, और उनके साथ ही वो ट्रेजरी भी शिफ्ट हो गई, and treasury became as a part of his house. Everyone, freed slaves, men and women, the young and the old, received an equal share from the nation's wealth. Aisha radiallahu anha said during the first year of his caliphate, he gave 10 dinars
or dirhams to a free man and a slave. He also gave 10 to the woman and 10 to her female servant. Then during the second year of his caliphate, he gave each person 20, thus increasing each person's share of wealth. फिर इनके अदल की आप देखें मिसाल कि फ्री मैन हो, स्लेव हो, सर्वेंट हो, सबको इक्वल मिलता था. पहले साल उनकी जो खिलाफत थी उसमें 10 दिनार या दिरहम मिले सबको, आदमी, औरत, फ्री मैन, फ्री स्लेव, सबको. और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में इंक्रीज होके डबल हो गया, 20 दिरहम या दिनार मिले. The policy of equal distribution bothered some Muslims who complained, "O Khalifa of the Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, in your distribution of this wealth, you have indeed given everyone equally. And yet there are those who are superior because of their long years of service to the religion of Islam. Those who were the first to do good deeds, and those who embraced Islam before other deeds. What would that you had given them more than you gave to others?" अब फिर से वही बॉदरेशन उनको हो रहा था. आपको मैंने बताया ना, माल बड़ी फितना वाली चीज होती है. ये मुतमईन नहीं थे साहबाज. ये कहते थे कि वो लोग जो उन्होंने दीन पहले कबूल कर लिया, जिन्होंने ज्यादा साल अपनी सर्विस की इस्लाम के लिए, उनको भी सेम ही मिल रहा है एज कंपेयर टू द वंस जिसने न्यूली एक्सेप्ट किया है. To which Abu Bakr radiallahu anhu replied, "As for the groups of people you mentioned, those who are superior, those who were the first to do good deeds, and those who embraced Islam before others did, I am very well aware of what they did and of what they sacrificed for the cause of Islam. But the reward for that they did can be found only with Allah Azza wa Jal. Countless are His praises. What we are dealing with here is livelihood in this worldly realm. So it is not for me to hand out rewards for the performance of good deeds. In this regard, setting an example by earning one's livelihood and making sacrifice for others is better than selfishness." अभी ये जो है, जो इस चीज को माइंड कर रहे हैं, उनको बड़ा केयरफुली टैकल करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो एक रिबेलियस ग्रुप को इजाद दे दें. क्योंकि ये जो सेटिस्फाइड लोग नहीं रहते ना, सडनली देन दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. तो हाउ डिड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एड्रेस देम और हाउ डिड ही टैकल देम? बहुत खूबसूरती से उनको उन्होंने समझाया कि ये जो आप मुझे जो दलील दे रहे हो कि जो लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस की यानी इतने सालों से, और दे वर द फर्स्ट पीपल टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड थिंग्स लाइक दैट, और बहुत ज्यादा उन्होंने गुड डीड्स की, कहते आई एम नॉट द वन हु इज कॉम्पनसेटिंग देम फॉर देयर गुड डीड्स. उसका अजर वो अल्लाह के पास से लेंगे. हम जो है वो इस दुनियावी लाइवलीहुड, हमारे अखराजात जो यहाँ पर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो है वो फेयर और इक्वल लेवल पे होगा, और जो अजर ultimate ajr hai wo it is with Allah Azza wa Jal. And then he made it very clear to them कि earning one's livelihood and by making sacrifice for others, it is far better than being selfish. यानी selfish होने की कोई जरूरत नहीं, sacrifice करना और अपनी हलाल income को earn करना ये ज्यादा बेहतर है. Second in ranking, Imam al-Qurtubi, may Allah have mercy on him, wrote that certain scholars said that Abu Bakr radiallahu anhu was not only the second of two in the cave, but also the second of two in the ranking of the nation's members. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the first to invite people to embrace Islam and to fight those who attempted to hinder the progress of the religion. After the Prophet's death, Abu Bakr radiallahu anhu was the second person to do this very same things. अभी वो कौन सी जगह पे second ranking करते थे? Of course, गारे थोर में हम लोगों को पता था कि he was there with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the second human being there, and of course, third being Allah Azza wa Jal. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first थे जिन्होंने दीन के बारे में लोगों को दावत दी थी, लोगों को इस्लाम के बारे में बताया था, और उन लोगों के साथ यानी उन लोगों के साथ जंग कर डिक्लेयर किया था जो इस अटेम्प्ट को रोक रहे हैं. उनके बाद, उनके वफात पाने के बाद, who was the second person who did exactly the same? It was Abu Bakr radiallahu anhu. So, as per Imam al-Qurtubi, he is second in this also. Duties of the Khalifa. Muslim scholars unanimously agree that it is obligatory for Muslims in any given era to appoint someone to be their Khalifa. It then becomes that Khalifa's duty to oversee the affairs of his nation, to apply the teachings of Islam among his people, to establish justice throughout his realm, to provide for the needs of his people, to establish the geographical boundaries of his nation, to defend those boundaries against foreign empires and countries, and to spread the message of Islam to foreign people. अब इसमें briefly बताया गया है कि खलीफा की क्या क्या ड्यूटीज होती है. So what are the duties? Muslim scholars ने इसको unanimously सबने इकट्ठा अग्री किया है कि it is an obligatory, फर्ज है in any era कि मुस्लिम्स जो है वो अपना खलीफा अपॉइंट करें. और खलीफा की ड्यूटी क्या है?
कि वो अपनी नेशन की पूरी कार्यवाही को ऑब्जर्व करें, नोट करें, और फिर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को अपने लोगों में, अपनी रियाया में लागू करें, और उसके बाद अदल, जस्टिस जो है उसको लागू करें, और सारे नीडीज जो हैं, जो गरीब मिस्किन तबका है, उनको प्रोवाइड करें, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज की प्रोटेक्शन करें, उसको डिफेंड करें कि कोई फॉरेन या नेबरिंग कंट्रीज या कोई दुश्मन आके उसको अटैक ना करें, और उसके बाद अपना दीन का जो, इस्लाम का जो मैसेज है वो फॉरेन लोगों के ऊपर भी, बाहर के जो लोग हैं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें स्प्रेड करें. Simple and very straight duties, and Alhamdulillah Abu Bakr radiallahu anhu was doing much more than this. Only necessary provision. Once the wife of Abu Bakr radiallahu anhu expressed a desire to eat something sweet. Abu Bakr radiallahu anhu told her that they were not financially capable of buying the ingredients of the sweet dish. Bear in mind that before becoming the Caliph, Abu Bakr radiallahu anhu was a very rich and successful businessman and enjoyed a life of ease and tranquility. But now, busy with fulfilling his responsibilities towards the Caliphate, Abu Bakr radiallahu anhu could no longer look after his business profession and would therefore take a small stipend for his daily needs from the Islamic treasury. एक बार ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट की कि वो कुछ मीठा खाना चाहती है. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि वी कैन नॉट अफोर्ड, हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि उस चीजों की इंग्रेडिएंट्स के पैसे हमारे पास जमा हो सके. अब आप सोचें, खलीफा, ओके, द पर्सन हु इज होल्डिंग, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस मुस्लिम नेशन, ट्रेजरी इनके पास, इनके घर में है, और इनकी बात ये है. और आप सोचें, इस्लाम में दाखिल होने से पहले वो बहुत रिच थे, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और बहुत इजी और लग्जरी वाली लाइफ वो जिया करते थे. अब यहाँ पर देखिए उनकी वाइफ भी कितनी माशाल्लाह, यानी हाउ इज शी सपोर्टिंग हिम एंड हाउ शी सर्वाइव्ड विद हिम. अब वो पहले की जैसी लैविश लाइफस्टाइल नहीं है. अब वो एक छोटी सी स्टाइपेंड, छोटी सी सैलरी लेते हैं और अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहते हैं, इसलिए अपने बिजनेस पे ख्याल उनका नहीं है. तो एक छोटी सी जो हाजत है कि कुछ मीठा खाया जाए, उसके लिए इतनी परेशानी है. His wife said, by being careful with my spending, I will try to save a little each day from a daily expenditure so that I can collect an amount sufficient for us to prepare something sweet. Abu Bakr radiallahu anhu said, yes, you may do that. After several days, a small sum had been collected with which something sweet could be prepared. But instead of using the money to cook a sweet dish for themselves, Abu Bakr radiallahu anhu donated the sum to the Muslim treasury and asked the person in charge of the treasury to please make a deduction of equal to this sum from my stipend because we are able to survive on less than that. This is a height of being fair and being humble and being the most, जैसे मैं बताऊं ना, यानी आजिजी के मामले में आप देखें, उनकी वाइफ ने सब्र कर लिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं. ओके, व्हाट डिड शी डू? शी इज अ वाइज वुमन. उन्होंने कहा कि मैं अपने रोज थोड़ा थोड़ा सेव करूंगी और फिर उन पैसों से मैं स्वीट डिश प्रिपेयर करूंगी. अब जैसे ही एक टाइम गुजरा, कुछ पैसे जमा हो गए, उसने अपने हस्बैंड को, शौहर को बताया कि ये पैसे जमा हो गए, नाउ वी कैन अफोर्ड अ स्वीट डिश. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने वो पैसे डोनेट कर दिए. और फिर क्या कहा, उन्होंने जाकर अकाउंटेंट जो था उसको कहा कि मेरी स्टाइपेंड कम कर दें, क्योंकि हमारा खर्चा एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट उन्होंने उनको बताया रिड्यूस करने के लिए कि हमें ये एक्सेस मिल रहा है, इससे कम में हम सरवाइव कर सकते हैं. कैन वी एवर डू दैट? आई डाउट. हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं होती. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को बहुत फैला दिया है. हम लोग 4 टाइप की चीज के बगैर खाना खा नहीं सकते. हमारे बच्चे भी इसी तरीके से हैं. हफ्ते में 5 दिन हमने होटलिंग करनी है. हमारे घर बड़े होने हैं. हमारे घर की सोफे और पर्दे हर रमजान में बदलने हैं. हमारे कपड़े, हमारे ब्रांड्स, हमारे टशन, हमारे कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स एंड टॉयलेटरीज एंड हमारे सलून विजिट्स एंड हमारे जिम विजिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी हैव स्प्रेड आवर विंग्स बियॉन्ड लिमिट्स. हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला दिया है इस दुनिया में. हमारा गोल हमने बना दिया इस दुनिया को. आई वुड आस्क यू टू लिस्ट डाउन थिंग्स दैट यू आर डूइंग और यूजिंग इन योर लाइफ एज अ फैमिली एंड व्हाट ऑल कैन यू कट डाउन. धीरे 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 अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश करें, सिकुड़ने की कोशिश करें, और उन पैसों को चैरिटी कर लें, बिकॉज दैट अमाउंट इज द वन जो आपको कल कब्र में काम आने वाला है. So make a list,
of जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और उसको कट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका दिया है। We survived without all this extra expenditure. हम लोग बिना सलून जाए, बिना जिम जाए, बिना शॉपिंग किए, बिना एक्स्ट्रावेगेंजा होटलिंग किए, बिना ट्रैवल बोलते हैं ना ड्रीम डेस्टिनेशंस में जाए बगैर हम रह सकते हैं। हम रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, which means we can survive on the basics. तो अगर हम ये एक्स्ट्रा जो हमारा पैसा जो है वो बचता है ये सब चीजों से, उसको हम अपने हाथ से एज अ फैमिली कोई चैरिटी कर लें, कोई डोनेशन कर लें, किसी की फीस भर लें, किसी का राशन भर लें, किसी का मेडिकल बिल्स पे कर लें, कहीं पर कोई पानी का कोई पंप या कोई वाटर टैंक लगवा दें। डू समथिंग, थिंक अबाउट इट, अल्लाह से दुआ करें, ही विल ओपन अप द वेज फॉर यू। A true Imam. Appreciating the historical significance of Abu Bakr's carefully chosen words on the day the people pledged allegiance to him, Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that no person can truly be the Imam of this nation unless he applies the teachings of Abu Bakr radiallahu anhu presented during his acceptance speech. अभी जब ये यानी इमाम मलिक कहते हैं कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की जो स्पीच थी when he is accepting the allegiance, and ये इनकी जो acceptance speech थी, जब तक कि कोई ये सुन ना ले कोई नेशन और इसको अप्लाई ना कर ले, तब तक के वो ट्रू सेंस में एक सही लीडर, एक ट्रू इमाम ऑफ मुस्लिम नेशन नहीं बन सकता। व्हाट इज इट दैट गिव्स हिम दैट स्टेटस? क्या है ऐसा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के कैरेक्टर में, उनके वर्ड्स में, उनके थॉट्स में, उनके एक्शन में, जो उनको इतना आइडियल बनाता है? This is something that we have to pick up from this whole activity. ये जो हम लोग अपनी लाइफ का एक important 1 hour जिस एक्टिविटी में लगा रहे हैं, वो यही तलाशने में हम लगा रहे हैं कि वो ऐसी एक कौन सी चीज है, वो एक कौन सा ऐसा नुक्ता है जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह के नबी राजी, लोग राजी। What is it about this personality that everybody is pleased with him? Subhanallah. Treasury used for good causes. Abu Bakr radiallahu anhu used the portion of the wealth of the Muslim treasury to purchase camels, horses, and weapons for war purposes. Once during a harsh winter, he bought large quantities of velvet and distributed it among the widows of Al-Madinah. It is estimated that during Abu Bakr's 2-year caliphate, approximately 200,000 dinars or dirhams were collected in the treasury, with Abu Bakr radiallahu anhu spending the entire amount on good causes. He was a wise person, wise statesman. यानी ऐसा नहीं है कि वो पूरा फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं. He knows his duties. He knows कि what is important for the nation. तो वो क्या करते थे, एक पोर्शन जो है वो कैमल्स, हॉर्सेस, वेपन्स लेने के लिए, ताकि अपनी वॉर के लिए भी वो रेडी रहें. कभी अगर जंगी हालात हो तो उनका पूरा स्टॉक फुल होना चाहिए. एक बार बहुत ज्यादा शदीद सर्दी थी, विंटर थी, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वेलवेट लिया और मदीना में जितनी विडोज थी, जितनी बेवा थी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया. बताया जाता है कि 2 साल के खिलाफत में 200,000 दिनार या दिरहम्स कलेक्ट हुआ था ट्रेजरी में. एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने पूरा अमाउंट जो है वो अच्छे कामों में लगाए, गुड कॉजेस. क्या हम हमारी जितनी भी अर्निंग्स है उसको हम टोटल करें एंड जस्ट कैलकुलेट कि हमने अपनी जात पर कितना लगाया और गुड कॉजेस में हमने कितना लगाया. आई एम श्योर वी हैव नेवर डन सच अकाउंटिंग, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ वी शुड डू दैट. The Prophet's estate. Al-Qadi Iyad said about the estate of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Fatima radiallahu anha learned of the hadith about it and its meaning was explained to her, she abandoned her previous view that she had the right to inherit from the Prophet's estate. And it is important to note that after this incident, neither she nor her children ever repeated the demand that they should be given a share of the Prophet's estate. Years later, when Ali radiallahu anhu, who is Fatima radiallahu anha's husband, became Khalifa of the Muslim nation, he did not change the policy of Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu regarding the Prophet's estate, for it proves that he was in complete agreement with them. अभी ऐसा हुआ था कि after learning about some hadith in regards to Prophet's estate, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत थी, उसके बारे में ये था कि फातिमा रदियल्लाहु अन्हा पहले she was claiming it. ओके अभी आप जो है ना, इसको डोंट मिस्टेक दैट कि हम लोग जो है एज इन टुडेज टाइम वी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम आवर फादर्स प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है. दिस इज अ स्पेशल केस इन रिगार्ड्स टू प्रॉफिट्स प्रॉपर्टी. सो ये हमारे नॉर्मल सिचुएशन में लागू नहीं है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड.
तो फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, when she came to know about that perception, she immediately decided कि वो और उनकी औलाद को उनके बाबा की यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी में से शेयर नहीं चाहिए. अब हजरत अली, when he became the खलीफा, he did not change that rule. जो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने अपने खिलाफत में रूल बनाया था, he continued with that rule because he was in complete agreement with them. So he continued with that particular rule and law. I'm sure some of you will have a doubt in this, but don't get confused. What we are following right now is correct. So don't think we cannot claim from our fathers wealth as a virasa. Inheritance के ruling को ये disturb नहीं कर रहा है. We leave charity behind. Concerning the inheritance of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu said to Fatima and to the Prophet's uncle Al-Abbas radiallahu anhu, I have heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, we are not inherited from, rather what we leave behind is charity. Without a doubt, the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will take their due share from this wealth. According to another narration, Abu Bakr radiallahu anhu said, there is nothing that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam applied during his lifetime except that I applied it as well. I fear that if I were to abandon even a single thing that he did, I would end up going astray. I'm reciting this hadith, actually ये बुखारी से है 6726 and Muslim 1759 से, कि इनहेरिटेंस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को, अपने अंकल अल अब्बास को, कि I've heard the messenger that we are not inherited from, rather what we leave behind is charity. यानी हम लोग उसको विरासत में हासिल नहीं करते, बट हम जो छोड़ते हैं वो चैरिटी होती है. Without a doubt, the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will take their due share from this wealth. ठीक है, यानी कि उनका हिस्सा जो है अगर इस दुनिया में नहीं बन रहा है तो आखिरा में definitely they are getting a share. According to another narration, Abu Bakr said कि there is nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को अप्लाई किया है मैं भी उस चीज को अप्लाई करूंगा और कोई चीज को छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज मुझे डर है कि अगर मैंने एक भी चीज को, अगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उसको अगर मैंने अबैंडन किया तो मैं जो है वो गाफिलों में शामिल हो जाऊंगा. I will go astray. Historical accounts prove that during the time of his caliphate, Abu Bakr radiallahu anhu would give members of the Prophet's household their due share from the spoils of war and from the wealth of Fadak and Khaybar. But he did not distribute his wealth as inheritance because he had heard what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had said and forbidden concerning this matter. यानी जब वो जंग करते थे तो जो माल गनीमत मिलता था उसमें से प्रॉफिट्स के जो फैमिली थे उनको शेयर मिलता था, लेकिन ये जो विरासा वाला है उसमें से they have not given any share. Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. After Abu Bakr radiallahu anhu received the pledges of allegiance from the Muslims, a man came to serve him and greeted, "O Khalifa of Allah." Abu Bakr radiallahu anhu said to him, I am not the Khalifa of Allah, I am the Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Yani how they used to correct even a small here and there, they would not accept. एक बंदा उनके पास आया और फिर उनको ग्रीट करने लगा कि ओ खलीफा ऑफ अल्लाह. एट दैट पॉइंट अबू बकर ने उनको करेक्टिफाई किया कि मैं खलीफा ऑफ अल्लाह नहीं हूँ, आई एम द खलीफा ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Milking a woman's goat. Prior to becoming Khalifa, Abu Bakr radiallahu anhu used to milk the goats of a woman who lived in his district of As-Sunnah. After the people pledged allegiance to him in the Prophet's masjid, one of the girls of his district said, from now on, he will never again milk our goats for us. Hearing his words, Abu Bakr radiallahu anhu said, I will indeed milk them for you, and I certainly hope that my new job will not change me. Abu Bakr radiallahu anhu then continued to milk their goats for 6 months. He remained in As-Sunnah. After that, he moved to another area in the center of Al-Madina. देखें आजिज़ी की फिर से हाइट. Before becoming a Khalifa, he used to milk, जो दूध निकाला करते थे बकरियों का. तो जब when he was taking the pledge allegiance मस्जिद नबवी में, when he was becoming the Khalifa, तो वो जो थी लड़कियों ने कहा कि अब आप हमारे लिए milking the goat वाला काम नहीं करेंगे. तो ये सुनने पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इंडीड मैं ज़रूर करूँगा, मेरा न्यू जॉब जो है वो मेरे पुराने चीज को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा. और उन्होंने 6 months तक ही कंटिन्यूड मिल्किंग द गोट्स और उसके बाद वो सेंटर ऑफ मदीना में शिफ्ट हो गए. सो
उनके अंदर ना कोई प्राउड, ना कोई घमंड, ना कोई एरोगेंस, ना कोई अपने आप को बड़ी चीज समझना और दूसरों को हकीर समझना, ये कोई भी सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स नहीं थे. He remained what he was. This attests to Abu Bakr's humble ideas and lofty manners. For here was a man who was the most respected member of society, and he is the most powerful right now. Muslim nation का top person जो है वो ये थे, who was well advanced in his years and who was the leader of an entire nation. Yet, in spite of his status, he did not allow his new job to change the way in which he dealt with others. He continued to help other people, even though doing so took away from his time. He needed to do other important things. That Abu Bakr radiallahu anhu and other companions dedicated their valuable time for performing seemingly minor good deeds. यानी अब आप देखें उनको उन पे additional responsibilities है, फिर भी वो और उनके साहबास जो थे वो छोटी छोटी minor good deeds जो थी, जो कि बहुत valuable थी, उस जैसे लोगों का ख्याल रखना, उनकी हेल्प करना, पर्सनली जो कमजोर तबका है उसके साथ उठना बैठना और उनके साथ इन्वॉल्व होना उन्होंने बंद नहीं किया. Abu Bakr radiallahu anhu was a man who, with his good leadership skills and strong character, brought back peace and justice to the Arabian Peninsula. With the defeat of the apostates who, as a brave and a wise general, fought against the two superpowers of his era, the Romans and the Persian empires. यानी ये जो दो बहुत strong dynasties या empires कहते हैं Romans and Persians को, because of his this principle and character, ये इनकी जो आजिज़ी की और लोगों के दिलों में राज करने की जो quality थी, that gave him that strength. यानी he was very strong. अपने लोगों के साथ और मिस्किन लोगों के साथ नरमी और wars के टाइम में एक सख्ती और कड़की, that made him win against the two most superpowers, Romans or Persian Empire, and he actually managed to defeat them. Yani he had that skill of warfare also. Of course, bi'idhnillah, he had that Allah's support and grace, and so he defeated them. And yet वो है जो goats में का दूध निकाल रहे हैं. I hope that my new job will not change me. What a humble statement. कि मेरा जो new job है, imagine milking the goats and the top leader of the Muslim nation. कितना variation है दोनों job description में, but he continued. His new job, mind you, was not a simple one. Its duties entailed ruling over all Arabs, leading armies, and establishing the safest, most just, and most prosperous civilization on earth. यानी इतना डिफिकल्ट जॉब, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ, फिर भी इतनी सिंप्लिसिटी के साथ वो अपना जो एक नॉर्मल सादा सा काम है वो भी कंटिन्यू करते रहे. It did not prevent him from milking the goats for his neighbors. The most salient characteristics that Abu Bakr radiallahu anhu continued to maintain even after he became the Khalifa was his humbleness, आजिज़ी. Think about it. हम हमारे कैरेक्टर में आजिज़ी कैसे ला सकते हैं? Of course, we are not the leader of a Muslim nation or doing some warfare. लेकिन हम अपनी अपनी जगह पर सोचें, हम अपने आप में ये क्वालिटी कैसे ला सकते हैं? If his camel's bridle would fall on the ground, he would descend to pick it up himself. When this happened on one occasion, someone said to him, "Had you ordered us, we would have handed it to you, so that you wouldn't have had to get off your camel." Abu Bakr radiallahu anhu replied, "The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered us not to ask people for anything." Oh my God, this statement really shakes me up. अब आपको पता है कैमल पे चढ़ना, माउंट करना और उतरना कितना डिफिकल्ट है? I don't know how many of you have ever had the camel ride, but it's a task. It's a very huge task because camel की जो बैठता भी है कैमल तो उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा ऊंची होती है, और वो जो पोस्चर में जो बैठता है और उठता है, that is also very shaky. You go in the front, you go back forth, and then वो उठना बैठना बहुत बहुत troublesome है basically. अब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल उनका जो ब्रिडल था जिससे वो कंट्रोल करते हैं कैमल को, अगर वो नीचे गिर जाए, अब आप सोचें द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इंसान सिटिंग ऑन अ कैमल एंड हिज ब्रिडल इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, आसपास सारे आदमी हैं, आर्मीज आर अंडर हिज कंट्रोल, ओके, एंड देयर आर पीपल सपोर्टिंग हिम. वो अपना ब्रिडल उठाने के लिए खुद नीचे जाते हैं इतनी मशक्कत करके. जब उनसे किसी ने कहा कि आप हमसे अगर ऑर्डर करें, हमें ऑर्डर करें, तो एनीबडी वुड हैंड इट ओवर टू हिम. उस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या रिप्लाई दिया?
कि मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑर्डर दिया है कि लोगों से कुछ भी मत मांगो, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम पीपल। अब हम लोग जो हैं दिन में कितनी दफा, कितने हमारे फैमिली मेंबर्स या लोगों से मदद मांगते हैं। अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू गाइज नॉट टू सीक असिस्टेंस, बट अवॉइड, और ये सोच के अवॉइड करें कि ये सुनना है। ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, खुद उठ के ले लें। वहां से पानी चाहिए, वहां से कोई और चीज पकड़नी है, इधर से कोई किताब लेना है, उधर से सज्जादा रखना है, डू इट योरसेल्फ। हमें तो कोई कैमल या एलिफेंट का चढ़ने वाली बात नहीं है, just a matter of getting up on your feet and taking few steps. This is another activity for today. खुद इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं मगर इसके माने आप देखें, इसके फायदे आप देखें कि आप जो है ना कंटिन्यूसली जब लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते जाते हो ना, तो आपकी जो वर्ड्स होती है ना उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। यानी आप देखिए, अगर एक कोई बंदा आपके सामने जो हर बिना हिले आपसे हर चीज मांगता जाता है, थोड़ी देर के बाद आप ना उसको इग्नोर करने शुरू करेंगे। उस बंदे को अगर जेन्युइनली कोई चीज की जरूरत होगी ना, तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल रश टू हेल्प। लेकिन अगर आप खुद करते हैं, पहले नंबर पे तो जब आप खुद उठते हैं, चलते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपकी म्यूस्कुलोस्केलेटल जो है वो ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है, तो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, गुड टू बी एक्टिव एंड अजाइल। लेकिन अगर आप एक जगह पे जम जाते हो तो आप जो है ना अपनी जात पे जुल्म कर रहे हो। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज स्टे एक्टिव, स्टे इंडिपेंडेंट, स्टे सेल्फ सफिशिएंट। अगर कोई ऐसा काम, इमरजेंसी, जरूरत, डायर नीड हो, देन यू सीक हेल्प, देन यू सीक असिस्टेंस, वरना इसको अपना रोज का मामूल ना बनाएं। अपने बच्चों को भी इस चीज की आदत दें, भले आपके घर में 4 नौकर हों। एडवाइस, अर्ज योर किड्स कि वो अपना काम खुद करें, अपनी प्लेट्स खुद धोएं, अपने ग्लासेस सिंक में खुद रखें, अपने कपड़े फोल्ड खुद करें, अपनी ब्लैंकेट्स इन बेड को खुद संवारें। इट इज अ ब्यूटिफुल लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, क्योंकि कल को उन्होंने अपनी लाइफ आगे पता नहीं कौन किधर होता है, लेकिन अगर आपने इनको एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बना दिया, ये होगा एक असल सगापन अपने बच्चों के साथ। और जिन माओ ने अपने बच्चों को बेटा सो जा कम्बल के अंदर और उसको लाड़ प्यार किया, ये होगा उनके साथ सौतेलापन। So don't do that, and make each individual of your house independent and self-sufficient. Residence in Sun. After the migration to Al-Madinah, Abu Bakr radiallahu anhu stayed at the home of a companion from the Ansar named Kharija radiallahu anhu in the neighborhood of Sun, which today is the area around Al-Madinah airport. तो ये जो Al-Sun जो एरिया है, वो Al-Madinah, आज का जो Al-Madinah का एयरपोर्ट है, उस एरिया का नाम है। और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबा अंसार जिनका नाम खरीजा रदियल्लाहु अन्हा, खरीजा, हाँ इट्स नॉट खदीजा, खरीजा, उनके वहां पर रहते थे। खरीजा रदियल्लाहु अन्हु gave his daughter Habiba to Abu Bakr radiallahu anhu in marriage. Abu Bakr radiallahu anhu stayed in Sun until the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब ये जो खरीजा है, इनकी बेटी जो हबीबा रदियल्लाहु अन्हा, she was married to Abu Bakr radiallahu anhu, और ये अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इधर सुन में कब तक थे? जब तक till the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, उसके बाद फिर वो शिफ्ट हुए। Abu Bakr radiallahu anhu remained in Sun during the first 6 months of his caliphate. He would lead the people in prayer at Masjid al-Nabawi 5 times a day. 6 महीना वो इधर सुन में थे और इमामत करते थे मस्जिद al-Nabawi में 5 टाइम। The masjid would also serve as his office. He would either walk or ride on a horse to the masjid. After Isha prayer, he would return home. If for some reason he could not go to the masjid, then Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu would lead the prayer. तो उनकी मस्जिद में ही ऑफिस था, या तो वो चलकर जाते थे या घोड़े पे घोड़ा सवारी करते थे, और कभी कभार इशा के बाद वो घर आ जाते थे। और कुछ रीजन की वजह से अगर वो मस्जिद नहीं आते थे तो कौन इमामत करते थे? उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। His residence was a simple rural building. He did not renovate or build a new one. Some time later, he relocated to Al-Madinah. Again, I would just suggest, मैं आप लोगों को यानी force नहीं करूंगी, based on what we read, we try to implement it, right? ये सारी चीजों के अंदर ना अपना ज्यादा ध्यान ना डालें कि हमें अपने घर को बहुत ज्यादा डेकोरेट करना। हमारे घर के अंदर क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, आजिजी होनी चाहिए। हम वो गोल्ड और सिल्वर और अपहोल्स्ट्री एंड ब्रांड्स एंड दिस एंड दैट एंड आइकिया एंड टाइकिया एंड बनता संता, डोंट गेट इनटू ऑल दैट। ये सब गैर जरूरी चीजें हैं। हमारा फोकस किस पे होना है? हमारा फोकस होना है कब्र, आखिरा, गुड
रिजल्ट्स फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, प्लेजर ऑफ अल्लाह, तो उस पर ज्यादा ध्यान लगाएं। क्योंकि आप देखें जितने भी ये जिनको हम फॉलो कर हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनके घर कैसे होते थे? हार्डली एनीथिंग। आई एम नॉट सेइंग बी लाइक दैट, आई मीन आई विश वी कुड बी, बट इन रियलिस्टिक सेंस अगर हम ज्यादा लैविश होके ज्यादा उसको डेकोरेशन और ज्यादा कंपटीशन, मामला होता है कंपटीशन का, वो रेस में से आप हट जाएं। बस आप फोकस करें कि हमारा घर साफ हो, सादा हो, रोशनीदार हो, उसमें वो नूर हो जो नूर आता है कुरान पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से, इबादत करने से, अच्छे नेकी के काम करने से, वो वाली नूर हो, रादर देन द शैंडलियर्स जिसमें बहुत सारे हम बल्ब लगा के चमका दें। It's not required. What is required in the true sense is the peace and tranquility in the house. लोगों के दिलों में प्यार, इत्तेफाक, हमदर्दी, ये होती है असल खुशी, और ये होती है जो सुकून और सकीनत जो एक घर में होना चाहिए, rather than just running around brands like crazy. तो इनकी भी जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी? एकदम सिंपल रूरल बिल्डिंग थी, ना तो उन्होंने इसको रिनोवेट किया था, ना तो उन्होंने कोई नई बिल्डिंग बनाई थी। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद ही रिलोकेटेड टू Medina, the center of Medina, yani, from As-Sunnah to Medina. The woman who took a vow of silence. Abu Bakr radiallahu anhu forbade people from returning to ways of the pre-Islamic days of ignorance and from introducing new practices into the religion with no precedence in the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल फोरबेड किया हुआ था कि जब आप दीन में आ गए हो, दीन की चीजों को, इस्लाम की चीजों को आप फॉलो कर रहे हो प्रॉपर्ली, तो फिर वो जाहिलिया के जो टाइम की जो चीजें हैं और प्रैक्टिसेस थे उसके पीछे वापस जाना नहीं, उन्होंने बिल्कुल ममनू किया हुआ था। He also ordered people to adhere to the sunnah as firmly as possible. Qais ibn Hazm radiallahu anhu reported that Abu Bakr radiallahu anhu once met an Ahmasi woman whose name was Zainab. Abu Bakr radiallahu anhu noticed that she didn't speak at all, so he asked what was the matter with her. Someone told him that she made an intention not to speak single word throughout her pilgrimage to Makkah. To be sure, she did so out of desire to please Allah and to be more spiritual, but in reality, she was simply turning away from the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is why Abu Bakr radiallahu anhu reproached her, saying, "Speak, for what you are doing is not permissible and is from the pre-Islamic days of ignorance." एक बार ऐसा हुआ कि कैस इब्न हाजिम रदियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करे कि एक अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने एक औरत से उनसे मुलाकात हुई, अहमासी वुमन थी, उसका नाम जैनब था। अब ये औरत जो थी वो कोई बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल खामोश थी। तो उन्होंने पूछा तो पता चला कि इसने जो है मन्नत मानी है, यानी कि शी विल नॉट टॉक, वो बात नहीं करेंगी बिल्कुल जब तक कि पिलग्रिमेज खत्म नहीं होता। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को पता करना था कि ये अल्लाह को राजी करने के लिए कर रही हैं या बहुत ज्यादा अपनी रूहानियत में दर्जात बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं या क्या कर रही हैं, बट देन इन रियलिटी वो सुन्ना गैर सुन्ना काम कर रही हैं। तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, कहा कि बात करो, ये अलाउड नहीं है, ये जो है दौर जालियत का एक चलन रहा है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं। फिर वो औरत बोली, asking Abu Bakr radiallahu anhu who he was. He said, I am one of the Muhajirun. She asked, which Muhajirun? He said, from the Quraysh. She said, from which Quraysh do you belong? He said, verily you are asking too many questions. I am Abu Bakr. Finally, realizing who it was that she was speaking to, the woman said, O Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, for how much longer will we remain upon his goodness? Upon this goodness uphold Islam, which Allah has brought to us after we had been in a state of complete ignorance. Abu Bakr radiallahu anhu said, you will remain upon this affair as long as your iman remains upright. The word iman, even though it was an Arabic word, was new to the woman, who then asked, and what are the imams? Abu Bakr radiallahu anhu said, among your people, did you not have leaders and people of high standing in society, people who gave orders to their people and who were obeyed by them? She said, yes. Abu Bakr radiallahu anhu said, then the imams bear the exact same relationship with the people. They lead and give commands and the people follow them and obey their commands. अब जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने इस औरत को बात करने के लिए कहा तो she started talking, और ये she was one of the ladies who asked too many questions. So उन्होंने पूछना शुरू किया, said आप कौन है? उन्होंने कहा हम मैं मुहाजिरून हूँ। कहते हैं आप कहाँ से हो? कहा मैं कुरैश के कबीले से हूँ। कहते हैं ओके, आपका नाम? Then he said कि आप बहुत सारे सवाल करती हो, मैं अबू बकर हूँ। फिर उसने कहा ओके खलीफा ऑफ मैसेंजर, कब तक हम लोग ये जो सही रास्ता है, गुडनेस है, इस पे रहेंगे? एंड हम लोग इतने सालों से जहालत में थे। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप इस सही रास्ते पे तब तक रहोगे
जब तक आपके इमाम्स जो हैं, आपके लीडर्स जो हैं वो स्ट्रेट रहें। तो उन्होंने कहा कि ये इमाम्स क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके लोगों के अंदर आपके लीडर्स होंगे जो एक हाई पोजीशन पे होते हैं सोसाइटी में, जो ऑर्डर करते हैं लोगों को, और लोग जो हैं उनको ओबे करते हैं। तो कहती हाँ ऐसे लोग हैं। तो कहते ये है वो इमाम। और ये इमाम जो है जब तक कि ये स्ट्रेट रहेंगे, जब तक ये लीड करेंगे, ये कमांड्स देंगे और लोग उनको फॉलो करेंगे, तब तक कि आपको उनसे मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो वी हैव टू end our session today here. We've already 4 minutes up. By the way, ये हदीस जो है वो बुखारी में recorded है 3834. If there is any questions, feel free to ask, please. Any questions? No questions? Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inshallah we'll meet tomorrow. हमारे जो ये sessions हैं ये Sunday to Thursday हैं. Just a reminder because somebody was asking me if we have class today. Sunday to Thursday 2 p.m. to 3 p.m. and inshallah Saturdays we are doing Day of Judgment, so that we will continue inshallah next Saturday. And in regards to this, tomorrow inshallah we'll meet again. तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.